السلام علیکم. اسٹوڈیو 3 میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہیں شکیل چودھری صاحب اور آفتاب اقبال صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ گڈ. سر خبر ہار کی سنائیے. خبرار آپ بتائیے. ماشاء اللہ. سر رسپانس کا بتائیے. سب سے پہلے تو لوگوں کو, میرے ارد گرد تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا. رسپانس جو ہے نا وہ خوشی سے زیادہ حیرت ہے. ہاں, خوشگوار حیرت اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے پاسبل کر دیا. پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ ممکن ہے, لیکن پھر ٹرائی کیا تو یہ ٹیکنالوجی نے ممکن کیا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم چیز ہماری ڈٹرمنیشن تھی. جی ہاں, ہم لگے ہوئے تھے, پہلے دن سے لگے ہوئے تھے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن. اب کر لیا ایک دفعہ, اب وہ جو ہوتا ہے نا ایک چارم کہ جی بس اب اس کو کنٹینیو کرنا, ہم نے کر کے دکھانا تھا. الحمدللہ وہ دکھا دیا. اور یہ بھی پاکستان کی اب تک کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا, پہلی دفعہ ہوا ہے, اور یہ امپروو کرے گا بائی دا ڈے. انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. لیکن سر وہ جو ایک بے چینی اور تشنگی ہماری آڈینس کو ہمیشہ رہی ہے نا, ہم نے اتنے اس کی جگہ آلٹرنیٹیوز دیے ہیں بٹ دے ور لائک کہ نہیں آپ کا فلیگ شپ شو. اس کی اور خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اس دوران انشاءاللہ پاکستان بھی چلے جائیں گے, انشاءاللہ وہاں سے بھی کریں گے, اور بے دھڑک ہو کے باہر جایا کریں گے. کہ بھائی آڈینس تو یہیں پہ ہے نا. جو لوگ نہیں جا سکتے, باہر نہیں جاتے, وہ فلینکس پہ بیٹھتے ہیں, منی تھیٹر میں پرفارم کرتے ہیں. ہم اپنی پارٹیسپیشن کہیں سے بھی کر سکتے ہیں, کہیں سے بھی کر لیں گے. ابھی جو آپ حیرت کی بات کریں نا, لوگوں کو ایک اور حیرت, ٹھیک ہے ایک تو یہ سوچنا اور اس کو کرنا ایک بہت ہی ان یوزول سی چیز تھی, نئی چیز تھی, لیکن لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا پتہ چل رہا ہے کہ جی فلاں چیز ان دا میکنگ ہے یا پیپل آر ورکنگ آن اٹ اینڈ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, لیکن یہ ایک دم سے ہی آیا ہے. مجھے خود اتنا یقین نہیں تھا. جس دن سہیل ہمارے ساتھ کمٹ کر کے گیا ہے نا, جی وہ جو ہمارا وزرڈ ہے, ماشاءاللہ, میں سہیل کے تذکرے پہ ہمیشہ ماشاءاللہ کہتا ہوں. اللہ اس کی عمر دراز کرے. وہ اپنی کیئر بالکل نہیں کرتا صحت کے معاملات میں, کھانے پینے کے معاملات میں. میں اسے کہتا ہوں خدا کے واسطے مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, تم قیمتی بہت ہو, پاکستان کا اثاثہ ہو. اور تو اس نے کہا کہ یہ سربسر ممکن ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے تھوڑا سا کیلکولیٹ کرنے دے, ورک کرنے دے, میں آپ کو نیکسٹ ویک. تو ودن 2-3 days he came out with half a dozen solutions. Wow. And he said no issues at all. اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جائے گا ہماری ٹیم کو, جسے میں گراؤنڈ سٹاف کہتا ہوں. ایگزیکٹلی, مطلب فہیم کو, حسیب کو, ڈی سی او کو, جی جاوید اوان اس کا نام ہے, ڈی سی او تو اس کی چھیڑ ہے بیچارے کی. پھر ارشد ہے ہمارا ساؤنڈ ریکارڈسٹ, ہی از اے ساؤنڈ ٹیکنیشین, ویری گڈ ٹیکنیشین. پھر ہمارے جو ڈی او پی ہیں عدنان معراج, اس نے سفر میں ہمارا ساتھ دیا ہے, اور آپس کی بات ہے ہم نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے. جب وہ گھر بیٹھا لاہور ویلیاں کھا رہا تھا نا, ہم نے اس کا بھرپور ساتھ دیا. کہیں بیٹھے سن کے ہنس رہے ہوں گے, جی جی جی, کچھ احساس کریں. وہ کہہ رہا ہوگا جی میری قسمت, میری لاٹری نکلی تھی. جی ہاں, انہوں نے ثابت کیا کہ اٹ واز ویل ڈیزروڈ انویسٹمنٹ. جی جی جی, الحمدللہ. پھر ساری کی ساری پوسٹ پروڈکشن یہ بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کام کرتے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب قابل تحسین ہے. میک اپ کو بھول گئے. میک اپ تو ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, نوید بھائی, سونو, سب لوگ. اور ہمارے خبرہار کو سٹارٹ بھی پاکستان سے جو ہے وہ رباب باجی نے کروایا. اور ایک دو اور, تنویر خاص طور پہ, تنویر نے بھی بھاگ دوڑ بڑی کی ہے, گو کہ ٹیکنیکلی وہ بھاگ دوڑ نہیں شمار ہوتی. لیکن آپ کے پاس ہیلپنگ ہینڈز نہ ہوں تو آپ کیسے کہ. میرا یہ مشورہ ہے ینگسٹرز کو, ینگ انٹرپرینرز کو, کیونکہ ہم نے اس کا بھی تذکرہ کرنا ہوتا ہے نا کہ اپنے ایکسپیرینسز آگے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. خاص طور پر یہ جو انٹرپرینرز ہیں نا, جو کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, یاد رکھیے اچھی ٹیم روز روز نہیں بنتی, اور جب بن جائے تو پھر اس کو انٹیکٹ رکھنا آپ کا کام ہے. بھلے سے کام نہ ہو آپ کے پاس, آپ پلے سے فیڈ کرتے رہیں, سونر اور لیٹر آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا اس کا. جی, تو وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ جو لوگ کام آ رہے ہیں آج. آخر میں باہر کیوں آیا تھا شکیل صاحب؟ صحیح. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی آفتاب صاحب کو نکال دیا, مجھے کسی نے نہیں نکالا تھا, میں خود آیا تھا کہ یہ ایک پورے کا پورا شپ لوڈ آف ٹیکنیشینز ہے, یہ بے روزگار ہو جائے گا. پاکستان میں تو دور دور تک کوئی, یہاں میں کام کروں گا, آدھے یہاں کھپ جائیں گے اور آدھے پاکستان میں کھپ جائیں گے. یس, الحمدللہ من نون وہی کچھ ہوا ہے. اور ایون جو یہاں سے بھاگ کے گئے تھے ڈیزرٹرز, ان کو وہاں جا کے کام مل گیا مختلف چینلز میں.
और डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के हिसाब से कम एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है. इट्स अ रेवोल्यूशन. It is. मेरे जहन में भी एक वेग सा आइडिया था कि व्हाई डोंट वी ट्राई दैट, लेकिन फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल नजर आती थी. किस तरह होगा वहाँ पे, इंटरनेट की स्पीड क्या होगी, और फिर जो बंदा है वो देख किधर रहा है किधर नहीं रहा. तो वाकई हमारी जो टेक्निकल टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत की है. आप एक महीना रुक जाएं, या एक महीना भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, हमें बड़े स्टूडियो में शिफ्ट हो लेने दे नीचे. वो जो डॉक्टर साहबा का फ्रेम है यस वो मैथमेटिकली जियोमेट्रिकली वो ठीक नहीं है. वी नो दैट. यस हमारे पास मास्टर शॉट नहीं बनता. मास्टर शॉट जिसमें हम भी बैठे हों और हमारा सारे का सारा वहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी मिनी थिएटर है, वो नजर आ रहे हो एक शॉट में. That's right. यहाँ मुमकिन नहीं है बड़े स्टूडियो में जाके. अब देखा जाए तो ये चीट करना है. मैं बार बार कहता हूँ ये वाहिद फील्ड है जिसमें चीट करना हुनर है. हुनर है और क्रेडिट समझा जाता हाँ है. जी. तो Very true. ये हम करेंगे इंशाल्लाह ताला. और बाहर अगर आप करना चाह रहे हैं, यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान में बैठे हुए नौजवान अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी में, मिडिल ईस्ट में शो करना चाहते हैं, अब वो कहते हैं देन यू शुड टॉक टू मी, देन यू शुड कम एंड टॉक टू मी. Yes. मैं बताऊंगा इसका गुर क्या है. बड़ा आसान, चंद चीज़ों को वर्क करने की ज़रूरत है कागज़ के ऊपर, क्योंकि असल काम कागज़ पे होता है. उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकली सब पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, उसके Yes. बाद तो आप एग्जाम्पल रख देते हैं. और उसकी भी एक शर्त है, और ये कोई खुद सताई नहीं है, हरगिज़ नहीं है. इसमें मशवरा भी है, इसमें गाइडेंस है, क्योंकि मेरे इसमें मुखातबीन जो है ना शकील साहब नेसेसरीली यंगस्टर्स होते हैं, हमारे एज ग्रुप के बाद की जनरेशन. हत्ता कि जनरेशन जी भी जो है वो भी मेरी मुखातिब है इसमें, Right. क्योंकि कल के मेमार इन्होंने बनना है. बिल्कुल. बार बार, और ये मैं दोहराता रहूँगा. ये आज मैं मेरा ख्याल है कि 100वीं बार कह रहा हूँ, 1000वीं बार भी आप सुनेंगे इंशाल्लाह. ये बातें मैं करता रहता हूँ कि लूज़र वो होता है जो इस वजह से स्टेप ना उठाए कि कहीं Failure. नाकाम ना हो जाओ. यस नाकाम होने का डर जब आप ओवरकम कर लेते हैं तो कामयाबी वट पे पड़ी होती है. वाह. इसको याद रखने की बात है. सर लाहौर में जिस दिन हम टेस्ट करने गए थे, टेस्ट ट्रायल, मुझे देख के अपनी टीम को इतनी खुशी हुई. टीम में यही बात कर रही हूँ जो हमारी बिहाइंड द कैमरा होती है, अपना ऑडियो, अपने लाइट्स, अपने कैमरा, अपने DOPs, एवरीबडी वाज वर्किंग सो हार्ड. यानी एक दिन पहले से जो आप इंटरनेट स्पीड की बात कर रहे हैं, जिस तरह भाग रहे थे सब लोग, करा रहे थे, तो इट वाज लाइक बहुत अच्छा मुझे लगा. अच्छा जी, अब दीगर प्रोग्राम्स भी हैं हमारे, सिर्फ खबर हार ही नहीं है. सर आज के मेल बॉक्स पे नहीं, लेकिन हम आज के एपिसोड चूँकि अभी ज़रा टाइम लगे और कमेंट्स आना शुरू हो, फिर हम खबरहार के कमेंट्स शामिल करना शुरू करेंगे अब मेल जी, बॉक्स में. खबर हार के ब्लूपर्स भी तैयार होंगे. हाँ हाँ. ਇਲਾਹੀ ਖੈਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਏ ਕੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਏ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਕੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ एक गुजारिश, ਸੜੀ ਗੱਲ ਆ ਲੱਗੀ एक तो बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाते, अच्छा जी. और दूसरा बेसुरा गाना, इस कदर बेसुरा, हाँ जी. इस पे आपको शर्म करनी चाहिए. ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਇਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ ਲਾ यार तुम कैसे ढाड़ी हो हाय। कि तुम्हें गाना भी नहीं गाना आता? ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਾੜੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਭੰਡ ਗਏ ये बेचारे ढाड़ी भी नहीं है. ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਟਰੰਪ ਵਾਲੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਸਮਝਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. चलो, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी. ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਆਏ ਉਹ ਸਾਬਰ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ साबर ਦਾ फरीद क्या है? ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਰਜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਆਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਗੀ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਤੌਬਾ ਨਾਗੀ ਐ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਗਿਟਕ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੀ ਬਗੈਰ ਗਿਟਕ ਤੋਂ खस्सी पिंड, पता ना? इसको कहते हैं खस्सी पिंड. खस्सी पिंड ਕਿਉਂ खजूर, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ कि मैनू पिंड खजूर को कहते हैं. अच्छा, और पिंड खजूर नू। खस्सी इसलिए होती कि इसमें गिटक नहीं होती, इसमें बीज नहीं होता. ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਸਾਡੇ ਬਦਾਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇਰੇ ਮਨਸਰ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿ ਫਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ हाय हाय. ਆਹ मंसर फहीम. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਉਹ यार शाहजब मिर्जा को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी. शाहजब मुझे वैसे भी ना बहुत प्यारा लगता है क्योंकि परफॉर्मर कमाल है. ਕੀ ਬਾਤ ਆ. ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪਾਟੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ जी ਗਿਆ. जी जी,
बहुत ही उम्दा आदमी, बड़ा कर्टियस, नफीस नेचर आदमी। वाइज भी बड़े जी, नाइस। जितने हमारे ग्रुप के लोग हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह तमीज वाले हैं। कुछ वैसे बेचारे जूनियर्स हैं, इनकी मजाल ही नहीं बोलने की। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ नहीं आपने उनका तस्करा नहीं किया, वो जो एक वसीम पुन्नू है और राशिद कमाल हैं, वो तो थर्ड क्लास है, वो मुझसे पूछे आप। इसलिए वो गिनती में ही नहीं आए ना इनकी। यस, और दूसरा ये है कि वो परमानेंट भी नहीं है। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਲਾ ਖੈਰਾਂ ਕਰਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ नहीं तो क्यों, उन्हें काम नहीं मिलता इधर उधर? ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ नहीं, लेकिन वो जो राशिद कमाल है वर्गलैटी, ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦੇਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਗਾੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ उस जुगाड़ से याद आया सर, आपने प्रॉमिस किया था कि आप बताएंगे कि चाचा बूटा इतना लाउड और बोल्ड शो क्यों है। और टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग वल्गर। जी यस, हाँ, वर्गलैटी तो है ही। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और इसका जवाब मैं बारहा देता रहा हूँ, मजीद देता रहूँगा। देखें मेरे दूसरे शोज भी तो हैं ना, कभी खबरहार में, हालांकि खबरहार कितना शरारती शो है, कसौटी में भी हम शरारतें करते हैं। ओपन माइक कैफे जो था, जी हमाकते में बड़ी कॉमेडी होती थी, कभी वल्गैरिटी के मदार में हम दाखिल नहीं हुए, नेवर। ये जो शो चाचा बूटा है ना, ये शो कम और रिएक्शन ज्यादा है। इट्स अ रिएक्शन ऑफ अ कॉमन मैन टुवर्ड्स आवर सोशल इल्स, जिसमें सरकारी बदउनवानियां, बद इंतजामियां, बद अमलियां और माशरती इश्यूज, उनका बड़ा अमल दखल है। इनके ऊपर कर कर के बात, कह कर, तस्करा कर कर के हमने उसकी वैल्यू ख़त्म कर दी थी। वो अल्फाज देखे जी, ये बहुत बुरी बात है, ये बड़े शर्म की बात है, हमें डूब मरना चाहिए, हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, हम पे असर नहीं होता। ये सारी बातें क्लीशेज हो चुकी हैं, इनका कोई असर, ये अपना वज़न ख़त्म कर चुकी हैं। जी हाँ। तो मजबूरन फिर हमें अडॉप्ट करना पड़ा वो रास्ता जो एक रिएक्शनरी का होता है। और आपको पता है कमेंट्स में फिर इसी बात को लोग कहते हैं कि आप ये रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, या ये टाइम आ गया है, या इस तरह करके आपको लगता है आप कर सकते हैं। लोग तो खैर नहीं, कुछ लोग तो ये कहते हैं, मैं तो इसको बक बक के जुमरे में शुमार करता हूँ। ये कहना कि जी अब वर्गलैटी करके आप कॉमेडी कर रहे हैं, वर्गलैटी का सहारा ले रहे हैं। ये तो मैं ही जानता हूँ ना, खुदा जानता है, यू ऑल्सो नो दैट, कि अगर यही मामला होता तो फिर हम खबरहार में किस तरह कॉमेडी कर रहे हैं। वहां तो वर्गलैटी का अमल दखल नहीं, करीब से नहीं गुजरने देते। तो इसलिए इसको शो मत समझें, दैट्स इट। इसको एक रद्द अमल समझिए, रिएक्शन समझिए, और ये हर एक के देखने की चीज नहीं है। भाई मैं बड़ी माजरत से, बड़ी इनकसारी से ये गुजारिश करूंगा कि आप ये शो मत देखें, लेकिन अगर आप फिर भी इंसिस्ट करेंगे तो फिर मेरी यही गुजारिश होगी कि आप लगे रहें, आप तनकीद करते रहें। मैंने आपकी एक नहीं सुननी, क्योंकि ये शो इसी मकसद के लिए है। ये हमारा रिएक्शन है, और सिर्फ ये निचले तबके का ही नहीं, ये हर तबके का रिएक्शन है। वो तबका जो अपराइट है और अपराइट रहना चाहता है, लेकिन उसका इस्तेसाल हो रहा है। और फिर ये अकेले देखने का शो है, अपनी अपनी मर्जी से, या फ्रेंड्स बैठ के देखो, फैमिली के साथ ना देखो, बच्चों के साथ ना देखो। बच्चों ने अगर देखना है ना तो वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो भी अलग देखेंगे, हर एक के हाथ में एक्सेस और है। वो लर्न करेंगे इससे, क्योंकि किसी को रोका नहीं जा सकता। वो वल्गर हो, और ऐसी ऐसी वल्गैरिटीज पड़ी हैं बाहर, लोग देखते हैं, बच्चे भी जाते हैं देखते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं, उन्हें तो समझ ही नहीं आना। जो 14 साल का बच्चा जो है ना आज का, वो हमारी जनरेशन के हिसाब से बहुत आगे है, बहुत एक्सपोजर है उनका। तो इसलिए आप देखिए थ्रेशोल्ड भी बहुत ऊंचा हो चुका है। इन सारी चीजों को मैं इससे प्रमोट नहीं कर रहा, वल्गैरिटी इससे प्रमोट हो, नो। अगर ऐसा होता, मेरे यही नौजवान, यही स्क्रिप्ट, यही सारा कुछ, एक से एक बढ़ के परफॉर्मर खबरहार में पड़ा है, मैं वहां भी करता, लेकिन नहीं, वहां इसकी जरूरत नहीं है। वहां पर थोड़े एम्पियर्स चाहिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्पियर्स, क्योंकि यहाँ आता ही वो है जो सता हुआ हो। अच्छा, करप्ट लोग ये देखना पसंद भी नहीं करेंगे, क्यों? वो इसका हदफ होते हैं। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਘੂਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਈ ਇੱਧਰ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਕੱਪ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਚਾਹ ਦਾ ਫੜਿਆ ਵਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਿਰਫ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ हाँ मैं नहीं दसांगी तो फिर तुसी आके दसो। हाँ, और क्या करे, ब्रू, ये करे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ कितना लेके जाना? ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ लाख रुपया दे देंगे, ਸੁਭਾ ਇੱਥੇ ਦਾ जिम्बाब्वे दा। ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਰੇੜਾ ਮਗਾਲਾ ਪੁੱਤ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਾਲਿਆ ਮੁਰਗੇ 36 ਦਿਰਮ ਨਿਕਲਨੇ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਅ 6 ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? केड़े 6? ਹਾਂ ਇਹ 2 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। खबरदार 4 होंगे मैक्सिमम। ਆਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ 4? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦੇ ਹੀ 4 ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੌਥਾ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। किन्ने नहीं के नहीं 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 चौथा लान ना गड्डी खराब हो जाती है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ ਪੁੱਤ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। 4 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਚੜ ਜਾਂਦੇ, 4 ਲੈ ਜਾਂਦੇ, 2 ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲਾ ਖਪਾ ਕੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੱਗ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਨਕਾਰ ਫੇਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਫੇਰ? तो अल्लाह मालिक है, फिर क्यों है? ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਵੱਕਲ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਕੋ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਸ਼ਕੀਲ ਜੂ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਬਰੋ ਇਲਾਹੀ ਖੈਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡ ਵੀ ਉਰਦੂ ਚ ਬਣਨਾ। ਕਿਵੇਂ? मौला हैप्पी रखे आपको, जीते रहे बसते रहे। बाबा नागी भी तो है ना, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। वो अकेला वो ही नहीं मान। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੱਡਾ ਬੁੱਢੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੱਝ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮਾਜੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ। ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਲਿਜਾਣ ਡੇ। ਇਹ ਬਾਤ। अच्छा यार ये तो बहुत फीका है वैसे। ਹਾਏ ਹਾਏ। बहुत फीका, मैं हैरान हूं। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ। ਪਤਾ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾੜੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਐਸੀ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਣਾ। अच्छा कट तू भी नहीं है वैसे। ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਫੜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਮਠਿਆਈ ਕਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਸ਼ੋਅ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਚ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਮੈਂ- ओए होए होए। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਗਰ ਅਦਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? गला साफ कर। ਓਏ ਗਲਾ ਸਾਫ ਪੁੱਤ ਓਏ। ਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? गुफ्तगू गले से ही होती है, नथनों से होती है। ਆਹਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਹਨਤ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ। ਨੁੱਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਣਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ अच्छा ਪਾਉਂ। नुथने, ये क्या होता है? नून के ऊपर पेश नहीं है। ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੋਏ ਫਰੰਗੇ ਆਸਵੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ नथने, ਹੋਣ। हाँ नथने। नथने। हाँ और नथनों से करते हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? नथना, ये नथना है। ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, नथ, ਆ ਨੱਥ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। नथ ਹਾਂਜੀ है। ਹਾਂਜੀ। नथ, नथना। ਨੱਥ ਤੇ ਨੱਥਣਾ। तो कभी नुथ सुना है कि ये नुथ है? ਪਹਿਲੇ ਨੱਥ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੁੱਥ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੱਥ ਹੈ ਨਾ? ਨੱਥ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਨੱਥ ਹੈ। जी तो ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਬਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਪਾਏਗੀ। ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਫੜ ਓਏ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਮਰੇ ਹਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਤ ਤੇ ਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੋਈ। पता है मुझे हंसी कब आती है? हाँ जी, कब जब मैं आती? तुम्हारी कसम कुर्सी देखता ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਕਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀ? ਕੁਰਸੀ। हूँ, कॉमेडी की गुर्बत देखता हूँ। ਆਇਆ ਆਇਆ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ कह देना चाहिए कि हाँ आप ना। नहीं- ਯਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। सबके सामने कहेगा तो वो मेहनत करके, मसलन अगर तुमने मेहनत की होती। हाँ जी। आज शाम का जब आपको बताया गया था कि आज हाँ जी, आपने अपना असली काम करना है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੰਡ ਹੈਗੇ ਆ तो ਮੌਲਾ। थोड़ा सा कोई तैयारी करके आते। ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਨੱਕ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। यार ये नक तान चुकने से कुछ नहीं होता। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं ਲਵਾਂਗੇ। वो सारी बातें नहीं, मैं तुम्हें बूटे के तौर पे बातें दे सकता हूँ। हाँ जी। मैं बैठ के कॉमेडी ईच एंड एवरीथिंग वो दे सकता हूँ। भंडगिरी में तो इतने ज्यादा वो नहीं, कोई एक आध फिक्रा आ गया तो आ गया। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਭੰਡਾ ਨਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? जी जी बहुत फीके निकले ने वैसे ऐतकी ते। ਐਤਕੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਤੇ ਭੰਡ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਦਸੀ ਚ ਵੀ ਅਸਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। हम अगले सेगमेंट की तरफ ਹਾਂ चले। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਸੇ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਐ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਹੋਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮਾਹਮ ਕਮਾਲ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। माहम कमाल। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। माहम एक्ट्रेस अच्छी है। ਕਿਆ ਬਾ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਲ ਮਟੋਲ। अच्छा, हम अगले सेगमेंट में एंटर हो चुके हैं। आपकी याददाश्त देर से वापस आई है। बहुत अच्छे। अच्छा जी सर, मुरली मनोहर कहते हैं कि मोज़ार्ट ऑफ मद्रास श्री इलिया राजा को कहते हैं ए.आर. रहमान केरला से बिलोंग करते हैं। इनकी रिसर्च नाकिस है और शकील साहब ने इसका बड़ा मुफस्सल और मुदल्लल जवाब दे दिया। ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਗੁੱਡਾ ਖਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨਾ ਦ ਦ ਦ ਦ ਦ ਦ ਦ ਦ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं मैंने कभी ठीक है, मुरली साहब ने गुस्सा ही चढ़ाता उस्ताद ने। वो उन्होंने जो है बगैर रिसर्च के वो कमेंट लिखा था। अगर वो गूगल कर लेते ना इस सब्जेक्ट को तो फिर वो ये गलती ना करते। तो उन्होंने बगैर रिसर्च के ही होता है ना हवा में तीर चला। और फिर उन्होंने मेरा ख्याल रिमूव कर दिया अपना हाँ, मुझे नजर नहीं आया, मैंने दोबारा ढूंढा उसको। लेकिन हमने उनका कमेंट जो अपने पास सेव कर जी। अगला कमेंट है जफर इमरान साहब का कि टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ओरिजिनलिटी, बेटर टू गो बैक इन लाहौर एंड फाइट फॉर योर शो रादर वॉन्डरिंग अराउंड आर्टिफिशियल प्लेसेस। योर रियल क्रिएटिविटी इमर्जेस इन होमलैंड विद योर trained comedians, you know better internally। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एडा लंबा ਇਹ कमेंट। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। वो ये कहना चाह रहे हैं हाँ कि जी। आप यहाँ पर टामक टोइयां जो मार रहे हैं ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਕੀ? ਔਰ ਟਾਮਕ ਟੋਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। अच्छा आप रहने दे सर, आप किनको एक्सप्लेन कर रहे हैं? एक्सप्लेन की बहुत अच्छे नहीं बेटे। नहीं, मैं घर बैठे लोगों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो जो कह रहे हैं कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, हाँ, हाँ। तो इससे बेहतर है कि आप घर वापस आएं, हाँ जी। वहां बैठ कर करें, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना करें। ये उनकी राय है, हमारी राय उससे मुख्तलिफ है और हमने करके दिखा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा पुराना कमेंट है, जब हमने ऐलान किया था अनाउंस किया था। तो ये अंदर की कैफियत है उस बंदे की, ये सिंसियर हमारे शो के साथ हाँ। हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन डरा हुआ शरीफ आदमी, कोई जरूरत नहीं करनी। हाँ हाँ डरे रहना कि यार कहीं फ्लॉप ना हो जाओ, कहीं नाकाम ना हो जाओ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਭਾਂਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। पैंदे सट्टे ये सोच लेना हाँ। कि ये 10% इम्कान भी है, 1% इम्कान भी है कि मैंने कामयाब होना है, लेकिन मैंने तजुर्बा करना है, वो कामयाब आदमी चाहे फेल हो जाए। हाँ। तो अल्लाह ताला भी तो बरकत डालता है ना, ये फिर अल्लाह का रोल शुरू हो जाता है ये बात कि मेरे बंदे ने मेरे पे तवक्कल किया तो अल्लाह को किसी चीज़ की कमी है। सुभान अल्लाह। अगर आपका अज़्म पुख्ता हो तो इनिशियल नाकामी के बाद आपको कामयाबी मिल ही जाती है। अच्छे कामों में अज़्म ही तो तवक्कल कहलाता है। ਉੱਠਦੇ ਨੂੰ ਸਦਪਾ ਦਿੰਦੇ ਗਈ, ਉੱਠਦੇ ਹੀ। तो ये बात जो भाई साहब ने की है ना, ये बात। अच्छे पैराए में की है उन्होंने, लेकिन मैं इसे नौसत के जुमरे में समझता हूँ कि इस तरह दूसरे को डिस्करेज नहीं करते। अपने बच्चे को भाई साहब कभी डिस्करेज ना कीजिएगा। हमें तो खैर आपने क्या करना, हम तो बुजुर्ग हैं आपके। आगे चलने हम। ये बात। हक नवाज अंसारी साहब कहते हैं खबरहार शुरू, मुगैम्बो खुश हुआ, लाख लाख मुबारका। विटामिन खबरहार की कमी की वजह से मरने वाले हो गए थे, शुक्रिया आफ्ताब साहब, सलामत रहें। क्या अच्छी इंशा पर्दाजी है भाई। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਕੋ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਦੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। विटामिन खबरहार की कमी। वाह वाह वाह। याद है इमरान खान को मैंने इंटरव्यू में कहा था विटामिन आई। विटामिन आई, आपके अंदर विटामिन आई बहुत है। आई ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਦੇ ਲੱਗੇ। ओए तुमसे मुताल्लिक नहीं है ਓਏ ਅੱਛਾ ਭਾਉ ਖੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆ, ਵੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੁੱਤ। जी। सर काफ़ी दिनों से आपने इमरान खान का कोई जिक्र नहीं किया, कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा, कौम को आपकी आवाज़ की शदीद ज़रूरत है। हाँ, तो मैं जहाँ मौका होता है हस्ब तौफीक इमरान खान का जिक्र करता हूँ। अभी कल जो चला है चाचा बूटा, वो भरा हुआ था इमरान खान से। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾਤੇ अच्छा ਪਾਣੀ। ठीक है जी। ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ। अच्छा तुम कोई जुगत करने लगे थे? ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਨਾ ਸੁਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਜ਼ੇਨ ਚਾਂਦੀ ਝਾੜ ਹੀ ਐਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਸਲਿਪਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, बात क्या थी? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪੜੋ ਕਮੈਂट्स। निकल गई। मुस्तफ़ा बेग साहब कहते हैं शकील साहब, निगरान हुकूमत आपके सियासी आका नून लीग की थी और किसानों के हक पर डाका उसी दौर हुकूमत में डाला गया। हाय हाय। चले, ये भी खूब है। मेरे आका थे वो, पता नहीं। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ। ये शकील साहब हैं, ये मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करते हैं, ये ज़बान शबान नहीं चिकते। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। नहीं, अब तो मैं भी इनके साथ रह के ना ਅੱਛਾ ਜੀ। बिल्कुल इन जैसा हो गया। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜ਼ੈਗਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। बहरहाल बड़ा अनफेयर कमेंट है ये। जी जी, अनफेयर कमेंट है। डॉक्टर साहब, मैं वजाहत कर दूं कि मैं किसी लीडर को अपना आका नहीं समझता। ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਉਣ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। स्टैचू की हुंदा है? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ ਜੀ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦੀ,
लाश दी खिलाड़ी होंदे हाँ, एक ते नुक्सरा कटिया करो ती पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे यार सोन शकील साहब कह रहे ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨਕਨ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਗਨੇਟ ਕਹੀਦਾ ਮਕਨਾਤੀਸ ਦੁਕਾਨ ਚ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਟੈਚੂ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਲਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਹੋਰ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ अच्छा जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट भूले बिसरे गाने की तरफ। सर, आज का गाना कौन सा है? आज का गाना कंपैरेटिवली एक भूला बिसरा गाना है, एक ढका छुपा गाना है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन अपने वक्त में कुछ देर के लिए बहुत पॉपुलर रहा और उसकी बेशुमार वजूहात हैं। ये शाहिद और मुमताज़ की फिल्म थी शिकार, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज बाय शाहिद। शाहिद का अपना काम तो वो ऐसे ही जैसे रूटीन में काम होता है, स्टोरी बेस्ड था, लैंडस्केप खूबसूरत था, आउटडोर था और फिर इसमें मेहनत की गई थी। आउटडोर पाकिस्तान में सारा पहाड़ी इलाके में, मतलब इसमें रीच के साथ लड़ता हुआ असली रीच जी वो कैरेक्टर दिखाया गया। ये एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, गए वक्तों की, ऑलिवर रीड की फिल्म थी। द ट्रैप बड़ा शानदार सब्जेक्ट था और ये सुना है जैक निकलसन ने ये स्टोरी लिखी थी और उस वक्त तो बहुत यंग होगा, बच्चा होगा वो, कि एक गूंगी लड़की होती है तो वो उसको एक तरह से बाय करता है मार्केट से, स्लेव के तौर पर ना, ओपन मार्केट से। हालांकि इतनी पुरानी नहीं थी वो फिल्म, अमेरिकन साउथ की कहानी है। तो वो गूंगी होती है और प्रॉब्लमेटिक सी होती है, तो उसे अपने साथ बतौर वर्कर ले जाता है, ये शिकारी होता है। वहां पर फिर वो ट्रैप में उसकी टांग फंस जाती है, भेड़ियों का शिकार हो रहा होता है, तो वो लड़की उसकी मदद करने आती है और उसको उन भेड़ियों से बचाती है। अच्छा, वो इससे फरार हो जाती है, भाग जाती है, फिर उसे ख्याल आता है कि नहीं मेरे बगैर वो बेचारा मर जाएगा, ख्वार हो जाएगा। वो फिर भागती है, वापस आती है, दे फॉल इन लव विद ईच अदर। और जिस तरह वो मंजर कशी है ना, किस तरह ट्रांसेंड कर जाती है मोहब्बत, तो उसकी बुनियाद पर ये फिल्म बनी थी। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स ज्यादा थे। हमारी जो शिकार है, अच्छा, उसमें सिनेमेटोग्राफी कमाल थी, परफॉर्मेंस बहुत कमाल थी, वल्व्स के साथ लड़ाई, ट्रैप में टांग फंसना, वो एक और ज्यादा शशका था। तो इसमें एक जगह पर एक गाना उसकी विजन में है, जो है ना, ट्रांस में जाती है, इनको आपस में कुछ हो चुका होता है, वो मरज लायक हो चुका होता है, को प्यार मोहब्बत इश्क का जी, पुतली तमाशा हो रहा होता है। तो पुतली तमाशा देखते देखते ये अपने आप को ना इमेजिन करती है मुमताज कि मैं वो लड़की हूँ, साथ ये वो बंदा है। एग्जैक्टली इसी तरह की एक परफॉर्मेंस नरगिस और राज कपूर की भी है, प्रॉबेबली चोरी चोरी फिल्म में। बहुत अच्छे कप हूँ नाल चबना फड़ा दियो इधर, सुभान अल्लाह। वो गाना है दिल लेके मुकर गया हाय, सजन बेईमान निकला, उसमें बड़ी मेहनत की थी और मुमताज वाज अ ग्रेट परफॉर्मर और शाहिद ऑल्सो। इस गाने पे शाहिद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैं समझता हूँ कोरियोग्राफ बड़ा अच्छा किया गया, पपेट्स की तरह ही पपेट, बिल्कुल पपेट्स। और इस फिल्म में रंगीले की कमाल परफॉर्मेंस थी। उसका नाम खोता साईं था फिल्म में, खोता। उसकी एंट्री पे कोई क्लैप होती थी हर दफा। वाह, अच्छा डायरेक्टर और भी कुछ लिखदा नहीं ना, रंगीला साहब दा ते खोता ही लिखिया जांदा सी। फिर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस विलन की थी। विलन कौन था? मुस्तफा कुरैशी, वो वेरी गुड परफॉर्मेंस। हस्बे तौफीक इसमें रेप शेप भी है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਨ ਨਿਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਿਲਮੀ ਮੇਕਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तो अदीब साहब ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। और on ये क्या कर? तो इट वाज गुड, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो इस गाने की कंपोजिशन है ए हमीद की। ए हमीद साहब बड़े बाकमाल कंपोजर थे, इनका सुपर हिट गाना था बस गया तू सौतनिया के द्वार सजना। कहाँ है तेरा प्यार से? दोस्ती के गाने बड़े लाजवाब गाने थे। तस्लीम फाजली के लिरिक्स हैं और गाया माला ने। हमारे शो में गाया है उकाशा गुल ने। दिल लेके मुकर गया है, दिल लेके मुकर गया है, सजन बेईमान निकला, सजन बेईमान निकला रब्बा हाय हाय। दिल लेके मुकर गया है, दिल लेके मुकर गया है, सजन बेईमान निकला, सजन बेईमान निकला रब्बा हाय हाय। दिल लेके मुकर गया है। बन जाऊं हर तेरा साया, तू जाए जहाँ वे साथ रहूं, बस जाऊं हर तेरे मन में, तेरे साथ यूं ही दिन
पर तूने एक न मानी, झूठा है दिल बर जानी। रब्बा हाय हाय दिल लेके मुकर गया है, दिल लेके मुकर गया है। सजन बेईमान निकला, सजन बेईमान निकला। रब्बा हाय हाय दिल लेके मुकर गया है। मेरी बातें हर ये न समझे, मेरे प्यार से क्यों बेगाना है। जब देखे हर यूं देखे, जैसे कोई अनजाना है। मैं तेरी हूँ अपना ले, बाहों में मुझको छुपा ले। रब्बा हाय हाय दिल लेके मुकर गया है, दिल लेके मुकर गया है। सजन बेईमान निकला, सजन